Today we start exercise 2, right? Now taking question number 1. Cos inverse cos 13 pi by 6. Now we know that cos inverse cos x is equal to x if x belongs to range of cos inverse. It is closed interval 0 to pi. But 13 pi by 6 is more than pi, because 13 pi by 6 is more than 2 pi. So 13 pi by 6 it does not belongs to closed interval 0 to pi. तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे उसको. मल्टीपल ऑफ 6 12 पाई प्लस पाई होगा 13 पाई यानी 12 पाई प्लस पाई. नाउ डिवाइड बाई 2 क्या मिलेगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 6. नाउ 2 पाई प्लस थीटा. Now 2 pi plus theta lies in the first quadrant, and we know that in first quadrant all functions are positive, so it is cos pi by 6. Now pi by 6 always belongs to closed interval 0 to pi. So cos inverse cos x equal to x. So x equal to क्या होगा, pi by 6. The answer is pi by 6 because pi by 6 belongs to closed interval 0 to pi. Question number 2. Tan inverse tan 7 pi by 6. Now we know that tan inverse tan x equal to x if x belongs to range of tan inverse. Range of tan inverse यानी upper interval minus pi by 2 plus pi by 2. It is more than pi by 2 because 7 pi by 6 यानी more than pi. So this 7 pi by 6 does not belongs to upper interval minus pi by 2 to plus pi by 2. Split करो इसको. 7 पाई बाई 6 यानी 6 पाई प्लस पाई डिवाइड बाई 6 करो. पाई प्लस पाई बाई 6 होगा. पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव बिकॉज ऑल एस टी सी थर्ड में 10 आता है. 10 पॉजिटिव यानी 10 पाई बाई 6 हो गया, राइट. पाई बाई 6. नाउ वी नो दैट पाई बाई 6 बिलोंग्स टू अपर इंटरवल माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2. द आंसर इज पाई बाई 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. प्रूव दैट 2 sin inverse 3 upon 5 is equal to tan inverse 24 by 7. ठीक है. sin inverse 3 upon 5 given है. we assume alpha. alpha belongs to sin inverse यानी closed interval minus pi by 2 plus pi by 2. तो क्या मिलेगा इसके ऊपर से, sin alpha equal to 3 upon 5. now we want to find cos alpha using identity. Cos square alpha is equal to, you can write 1 minus sin square alpha. So 1 minus sin alpha is 3 by 5. So sin square alpha is 9 by 25. 1 minus 9 upon 25, that is 25 minus 9, 16 by 25. तो ये alpha belongs to closed interval minus pi by 2 plus pi by 2 यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, बराबर. फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, cos पॉजिटिव. सो वी गेट cos alpha equal to 4 upon 5. But we want to tan inverse. तो sin alpha is 3 by 5, cos alpha is 4 by 5. तो tan alpha equal to sin alpha upon cos alpha. So that is 3 upon 5 upon 4 upon 5. That means tan alpha equal to we get 3 by 4. अब देखो आपको प्रूव क्या करना है. 2 sin inverse 3 by 5 equal to tan inverse 24 by 7. यानी ये तो हो गया 2, ये आ गया आपका अल्फा यानी कि 2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स है. इसको उठा इधर लेके आओ तो क्या बना, tan 2 अल्फा हो गया. प्रूव क्या करेंगे, 24 बाय 7. ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना. ये अल्फा एज्यूम किया हुआ है अपन ने, लेट सपोज किया ना पहले. तो इट इज 2 अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाय 7. tan इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो 10 हो जाएगा. तो tan 2 अल्फा इक्वल टू वी वांट टू प्रूव दैट 24 बाय 7 यूजिंग tan अल्फा इक्वल टू 3 बाय 4. अब ये तो ये 11 का फॉर्मूला. नाउ वी नो दैट tan 2 अल्फा का फॉर्मूला याद होना चाहिए. tan 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या था, 2 tan alpha upon 1 minus tan square alpha. Now substitute the value. चलो वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या होगा, 2 into 3 by 4 upon 1 minus 9 by 16. 2 cancel, that is 3 by 2. 16 minus 9, 7 by 16. 16 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा. तो 3 into 16, 7 into 2. 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 upon 7. That is tan 2 alpha equal to we get 24 by 7. So 2 alpha equal to tan इनवर्स 24 by 7. बट अल्फा एक्चुअली अल्फा क्या था हमारा, sin इनवर्स 3 upon 5.
तो डेट इज वी गेट 2 sin inverse 3/5 इक्वल टू 10 inverse 24/7. Question number 4. Prove that sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 equal to tan inverse 77/36. ये अल्फा एज्यूम करो, इसको बीटा एज्यूम करो. साइन इनवर्स 8/17 अल्फा, तो अल्फा कहाँ मिलेगा? क्लोज इंटरवल -π/2 प्लस π/2 होगा. ये बीटा सपोज करेंगे तो बीटा भी वही मिलेगा. दैट मीन्स साइन अल्फा हमारा कितना हो गया? 8/17 और इधर साइन बीटा कितना हो गया? 3/5. नाउ वी वांट टू फाइंड कॉस अल्फा यूजिंग आइडेंटिटी. कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. तो 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर करो. 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64. 17 का 289. तो 289 माइनस 64 यानी 225/289. बट अल्फा कहाँ पे है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. कॉस पॉजिटिव मिलेगा. सो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा आपका? राइट, ये हो जाएगा हमारा 15/17. सेम टू सेम कॉस स्क्वायर बीटा ले लो. कॉस स्क्वायर बीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा. तो 1 माइनस 9/25 तो 16/25 यानी 4/5 बिकॉज कॉस बीटा भी पॉजिटिव मिलेगा. साइन अल्फा हमें मिल गया, कॉस अल्फा मिल गया, साइन बीटा मिल गया, कॉस बीटा मिल गया. इसके ऊपर से टेन अल्फा मिलेगा. चलो टेन अल्फा कितना होगा? साइन अपॉन कॉस होगा ना. 8/17 अपॉन 15/17 यानी 8/15 होगा. टेन बीटा इधर क्या मिलेगा? 3/5 अपॉन 4/5 दैट इज 3/5. राइट, ये टेन अल्फा 8/15, टेन बीटा 3/4. इट इज अल्फा, इट इज बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 77/36. इसको इधर लेके आओ, क्या बनेगा? tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 77/36. ये आपको प्रूव करना है. तो ये ले लो आप. इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 11th स्टैंडर्ड में, चैप्टर 5 में मैंने लिखाया था कि tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा होगा. लिख दिया. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. tan अल्फा 8/15, tan बीटा 3/4. tan अल्फा इंटू tan बीटा 8 इंटू 3 24, 15 इंटू 4 60 हो जाएगा. एलसीएम ले लो. 8 4 जा 32, 15 3 जा 45, 60 माइनस 24. तो वी गेट 32 प्लस 45 यानी 77 और 60 माइनस 24 दैट इज 36 हो गया. सो वी गेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स 77/36. बट अल्फा इक्वल टू एक्चुअली क्या सपोज किया था? साइन इनवर्स 8/17 एंड बीटा इक्वल टू क्या सपोज किया हुआ है? साइन इनवर्स 3/5. So we get sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 77/36. Question number 5. Prove that cos inverse 4/5 plus cos inverse 12/13 equal to cos inverse 33/65. ये तो अल्फा सपोज करेंगे, इसको बीटा सपोज करेंगे. ठीक है. cos इनवर्स से तो कंडीशन क्या बनेगा? 0 to पाई. इसमें भी 0 to पाई हो गया. इसके ऊपर से cos अल्फा 4/5 हो गया, cos बीटा 12/13 हो गया हमारा. अब ये देखो, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया. तो अल्फा प्लस बीटा होगा हमारा. ये कॉस इनवर्स है, इसको उठा के इधर लेके आओ. यानी प्रूव क्या करना हमें? कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 33/65. तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या है एक्चुअली? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है. तो कॉस अल्फा तो आपके पास है, तो बाकी क्या रह गया? साइन अल्फा बाकी रह गया. कॉस बीटा भी है, तो साइन बीटा बाकी रह गया. यूजिंग आइडेंटिटी साइंस के अल्फा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा. तो 1 माइनस 16/25 यानी 9/25 होगा. 1 माइनस 144/169 यानी 25/169. बट कंडीशन इज गिवन 0 to पाई 0 to पाई. तो साइन अल्फा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, तो साइन अल्फा पॉजिटिव, साइन बीटा ऑल्सो पॉजिटिव. सो वी गेट साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 एंड हियर साइन बीटा इक्वल टू वी गेट 5/13. ठीक है. ये हो गया आपकी चारों चार वैल्यू मिल गई. नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. कॉस अल्फा इज 4/5, कॉस बीटा 12/13. तो 4 into 12 48/65. राइट. हियर 3 into 5 15/65. तो 48 minus 15/65. तो आंसर इज 33/65. बट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? कॉस इनवर्स 33/65. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा. अल्फा क्या एज्यूम किया हुआ है? कॉस इनवर्स 4/5 और बीटा कॉस इनवर्स 12/13. वी गेट द आंसर.
Now we start question number 6. Cos inverse 12 by 13 plus sin inverse 3 upon 5 equal to prove that sin inverse 56 by 65. पहले तो अल्फा सपोज करेंगे, इसको बीटा सपोज करेंगे, तो इजी है. कॉस इनवर्स है तो कंडीशन क्या होगा 0 to पाई. साइन इनवर्स है तो क्या होगा कंडीशन माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल में. तो कॉस अल्फा इज 12 by 13 एंड साइन बीटा इज 3 by 5. यानी ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा हुआ हमारा. अब ये साइन इनवर्स है, यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा साइन बनेगा. तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको प्रूव क्या करना है 56 by 65. इसकी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए. साइन अल्फा प्लस बीटा. नाउ साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है. तो रिक्वायरमेंट है साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा. वी हैव टू वैल्यू कॉस अल्फा एंड साइन बीटा, यानी कि ये आपके पास है कॉस अल्फा है और दूसरा साइन बीटा है. तो ये दो आपको फाइंड करने पड़ेंगे. चलो कॉस अल्फा इज कितना है 12 by 13 है. वी वांट टू साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा. तो 1 माइनस 144 by 169 यानी 25 by 169. बट यर अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट. साइन अल्फा इज पॉजिटिव, सो वी गेट साइन अल्फा इक्वल टू 5 by 13. ये आ गया हमारा साइन अल्फा 5 by 13. सेम टू सेम यहाँ पे देखो साइन बीटा 3 by 5 है. वी वांट टू फाइंड कॉस बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू आइडेंटिटी क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा. तो 1 माइनस 9 by 25 यानी 16 by 25 माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. कॉस पॉजिटिव मिलेगा, तो कॉस बीटा का वैल्यू कितना होगा 4 by 5. चारों चार वैल्यू मिल गया हमें. नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. चलो साइन अल्फा कितना है 5 by 13, कॉस बीटा 4 by 5, कॉस अल्फा 12 by 13, साइन बीटा 3 by 5. 5 हो जा 20, 12 3 जा 36 अपॉन जो 65 मिलेगा, यानी 56 by 65. ये हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा इज साइन इनवर्स 56 by 65. बट अल्फा एक्चुअली क्या सपोज किया था कॉस इनवर्स 12 by 13 और बीटा कितना है साइन इनवर्स 3 by 5. तो वी गेट द डायरेक्टली आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. प्रूव दैट tan inverse 63 by 16 is equal to sin inverse 5 by 13 plus cos inverse 3 by 5. ये तो हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया. ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया. बट अल्फा कहाँ मिलेगा साइन इनवर्स है तो क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2. ये कॉस बीटा है तो कितना आएगा बीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, यानी साइन अल्फा 5 by 13 हो गया. कॉस बीटा 3 by 5, यानी ये अल्फा ये बीटा. अल्फा प्लस बीटा ये टेन इनवर्स को उधर लेके जाओ क्या बनेगा टेन अल्फा प्लस बीटा. कितना प्रूव करना है आपको 63 by 16. इसकी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए. टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा. ये हमारा फॉर्मूला है. बट ईयर वी हैव ओनली साइन अल्फा एंड कॉस बीटा. तो इसके ऊपर से क्या करेंगे कॉस अल्फा फाइंड करेंगे, इसके ऊपर से क्या फाइंड करेंगे साइन बीटा फाइंड करेंगे. बराबर. कॉस के अल्फा का फॉर्मूला क्या था 1 माइनस साइन के अल्फा, यानी 1 माइनस 25 by 169. एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 25 दैट इज 144 अपॉन 169 हो गया. साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो 1 माइनस 9 by 25 यानी 16 by 25. अल्फा बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कॉस अल्फा तो पॉजिटिव, बिकॉज कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है ऑल एसटीसी फर्स्ट एंड फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है. 0 to पाई यानी फर्स्ट एंड सेकंड साइन बीटा ऑल्सो पॉजिटिव. ठीक है, तो कॉस अल्फा हमारा कितना हो गया 12 by 13 और साइन बीटा कितना हो गया हमारा 4 by 5. चलो अब इसके ऊपर से टेन अल्फा, ये साइन अल्फा है आपका, ये आपका कॉस अल्फा है. कॉस बीटा है साइन बीटा है. टेन अल्फा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा 5 by 12. टेन बीटा 4 upon 5 3 upon 5 यानी 4 by 3. ये आपका टेन अल्फा हो गया और ये आपका क्या हो गया टेन बीटा हो गया. अब फॉर्मूला तो क्या है हमारा टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा. ये हो गया फॉर्मूला हमारा. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. वैल्यू क्या है हमारी टेन अल्फा की 5 by 12 और टेन बीटा कितना है 4 by 3.
ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इधर, 5/12 4/3 1 माइनस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा 20/36, एलसीएम ले लो, 5 3 जा 15, 12 4 जा 48 अपॉन 36 माइनस 20 कितना होगा 15 + 48 यानी 63 होगा, और नीचे कितना आएगा 16, ये हो गया हमारा tan अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा tan इनवर्स 63/16, बट अल्फा और बीटा तो हमने एज्यूम किया हुआ है। व्हाट इज अल्फा sin इनवर्स 5/13 एंड बीटा क्या है हमारा cos इनवर्स 3/5, वो तो था अप्रूव हो गया। 8 वाला तो हमने आगे कर चुके हैं, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/, इक्वल टू क्या प्रूव करना है 5/4। ये दो ले लो, ये दो ले लो, एक्स वाई सपोज करो, पता है वो तो आगे पता है आपको, tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा ना, एक्स वाई लेस देन 1, एक्स वाई लेस देन 1, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाला फॉर्मूला वो आपको पता है, ठीक है, वो आप देख लेना। प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये आपको प्रूव करना है। कंडीशन इज गिवन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब ये tan इनवर्स रूट एक्स है, सपोज कर दो थीटा, सपोज किया मैंने, कुछ भी सपोज कर सकते हो, अब एक्स सपोज कर, वाई एक्स तो है तो वाई सपोज कर सकते हो, अल्फा बीटा जो भी आपको चाहिए, तो वी एज्यूम थीटा tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू थीटा, तो थीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ tan इनवर्स, tan इनवर्स का रेंज क्या था अपर इंटरवल -π/2 प्लस π/2, तो tan थीटा हमारा कितना हो गया रूट एक्स हो गया, ओके tan थीटा रूट एक्स हो गया, बट कंडीशन इज गिवन है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ रूट एक्स है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, रूट 0 यानी 0, ये रूट एक्स, रूट 1 यानी 1 हो गया, तो रूट एक्स इक्वल टू सपोज कर दो tan थीटा, तो tan थीटा डाल दिया, 1 यानी tan π/4, 0 यानी tan 0 हो गया, tan ऑलवेज इंक्रीजिंग, कॉट ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है, ठीक है, साइन कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा 14 पे और कॉस 34 में, ठीक है, tan ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो tan कैंसल, वी गेट 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू π/4, ये हमारा थीटा हो गया, कंडीशन हो गया, ओके। नाउ वी टेकिंग LHS एंड RHS हियर, LHS इज tan इनवर्स रूट एक्स, तो नाउ वी टेकिंग RHS, RHS इज 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, बट रूट एक्स इक्वल टू tan थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो x इक्वल टू क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, सब्स्टिट्यूट करो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जब ये तो फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला होगा याद होना चाहिए, cos इनवर्स है तो cos का ही फॉर्मूला बनेगा, एंगल डबल होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। नाउ वी नो दैट कि भी cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, बट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π, यानी अब ये x की जगह पे हमारे पास कितना है 2 थीटा है, तो 2 थीटा कहाँ मिलना चाहिए इसके रेंज में, ठीक है, चेक करते हैं हम लोग, थीटा हमारा कहाँ पे है 0 to π/4, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या बनेगा 0 to 0 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 2 π/4 यानी π/2, कंडीशन क्या था 0 to π, 0 to π/2 इज अ सबसेट ऑफ 0 to π, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 कैंसिल, वी गेट ओनली थीटा, बट एक्चुअली थीटा क्या था हमारा, हमने पहले सपोज क्या किया था tan इनवर्स रूट एक्स, डाल दो रूट एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू x/2, x बिलोंग्स टू 0 to π/4, इस टाइप के सम हमने आगे किए हुए हैं, क्या करेंगे कॉन्जुगेट लेंगे ना, नीचे क्या है √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ये मिलेगा √1 प्लस साइन एक्स माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, यानी √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, उसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा इसका स्क्वायर आएगा पहले तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल 1 माइनस साइन एक्स होगा, a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स होगा, चलो ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, नाउ ब्रैकेट ओपन करो तो 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे क्या मिलेगा 2 साइन एक्स, चलो नोमिनेटर में क्या मिलेगा 1 + 1 दैट इज 2 प्लस 2 √1 माइनस साइन स्क्वायर यानी रूट का स्क्वायर यानी मॉड ऑफ cos x, तो नोमिनेटर में मिलेगा आपको 1 + 1 दैट इज 2 प्लस 2 मॉड cos x अपॉन 2 साइन x, ये मिल गया हमें इतना,
ना 2 कॉमन और कैंसिल हो गया। अब चेक करना पड़ेगा मॉड कॉस एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा गिवन ऑन द कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारा 0 to π/4 है। 0 to π/4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, सो कॉस एक्स पॉजिटिव, तो मॉड कॉस एक्स इक्वल टू यू कैन राइट कॉस एक्स, तो 2 कॉमन एंड कैंसिल 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया। चलो बट यहाँ पे तो क्या है कॉट इनवर्स है। 1 प्लस कॉस का कोई फॉर्मूला है हमारे पास, यस कितना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, राइट। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। 2 हमारा कैंसिल हो गया, कॉस कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कॉस बाकी रहेगा, नीचे साइन बाकी रह गया, कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट एक्स बाई 2 हो गया। अब चेक करना पड़ेगा कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स कहाँ पे होना चाहिए रेंज ऑफ कॉट इनवर्स। रेंज ऑफ कॉट इनवर्स आपको पता है क्लोज ओपन इंटरवल 0 to π माइनस π बाई 2, सॉरी क्लोज इंटरवल 0 to π माइनस π बाई 2, राइट। अब चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स हमारा कहाँ पे था 0 to π/4 है, ओके। एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/4 डिवाइड बाई 2 करो तो क्या होगा एक्स बाई 2 बिलोंग्स टू 0 to π/8। अब ये 45 था उसका अभी हाफ 22.5 डिग्री हो गया। इज सबसेट ऑफ 0 to π। कॉट इनवर्स में सॉरी कॉट इनवर्स का तो रेंज 0 ओपन इंटरवल 0 to π है ना, सॉरी। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 यानी वो हो गया सबसेट ऑफ 0 to π। तो कंडीशन सेटिस्फाइड, द आंसर इज x by 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये आपको प्रूव करना है। कंडीशन गिवन है -1 अपॉन रूट 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। पहले तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा ये कॉस इनवर्स एक्स है, थीटा सपोज कर दो, जो भी करो थीटा सपोज किया हमने, ठीक है। थीटा कहाँ मिलेगा रेंज ऑफ कॉस इनवर्स यानी क्लोज इंटरवल 0 to π, यानी कॉस थीटा हमारा कितना हो गया एक्स हो गया, ओके। नाउ कंडीशन गिवन है -1 अपॉन रूट 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। टेक द कंडीशन -1/√2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, बट एक्स हमारा कितना है कॉस थीटा 1 यानी कॉस 0। अब ये नेगेटिव है, ओनली पॉजिटिव होता है तो कॉस π/4 हो जाता है, नेगेटिव यानी सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो वी कैन राइट कॉस π माइनस π/4 यानी 3 π/4 हो गया। चलो ये हो गया हमारा 3 π/4 हो गया, ठीक है। कॉस π माइनस π/4 लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू कॉस 0। ये 0 ये 3 π/4, 0 एंड 3 π/4 लाइज इन द फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। We know that cos increasing in 34 यानी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट cos is increasing, so 1 and second quadrant, first and second quadrant में cos क्या होगा decreasing। when we know that when function is decreasing inequality will be changed। for example suppose a less than equal to b less than equal to c है, अगर cos लेते हैं हम लोग तो cos अगर decreasing है तो क्या बनेगा cos a greater equal to cos b greater equal to cos c होगा। इसके ऊपर से ये लिख सकते हो, इसके ऊपर से ये भी लिख सकते हो। और ये फंक्शन कॉस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर कॉस डिक्रीजिंग है तो कॉस रिमूव करेंगे तो क्या होगा पाई माइनस π/4 यानी 3 π/4, तो फर्स्ट यू कैन राइट 3 π/4, राइट। साइन चेंज ग्रेटर इक्वल टू थीटा एंड ग्रेटर इक्वल टू 0 बिकॉज कॉस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा, यानी कि कंडीशन क्या मिला हमें 0 to 3 π/4, ये हो गया हमारा कंडीशन हो गया। नाउ वी टेकिंग LHS, ये हमारा LHS है, बट एक्स हमारा कितना था कॉस थीटा, तो tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, आगे वाला जैसा हो गया। नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कर दो, a माइनस बी यानी होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, चलो इसका रूट कैंसिल हो गया, -2 दोनों का प्रोडक्ट करो तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस लास्ट इसका स्क्वायर करो 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल। नाउ 1 प्लस 1 इट इज 2 माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी रूट साइन स्क्वायर यानी मॉड ऑफ साइन थीटा, यानी ये मिलेगा हमें 2 माइनस 2 मॉड साइन थीटा।
ईयर 1 and 1 कैंसिल, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करो, फर्स्ट नेगेटिव आएगा, सेकंड क्या होगा पॉजिटिव। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा 2 कॉस थीटा, चलो 2 कॉमन एंड कैंसिल, तो वी गेट 1 माइनस 2 कॉमन एंड कैंसिल, बट ईयर मॉड साइन थीटा गिवन है। नाउ वी वांट टू चेक मॉड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ईयर कंडीशन इज गिवन, थीटा कहाँ पे है 0 to 3π/4, यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और सेकंड में साइन तो क्या होता है पॉजिटिव, साइन थीटा ग्रेटर इक्वल टू 0, तो वी गेट 2 कॉमन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये tan इनवर्स गिवन है, अंदर क्या चाहिए आपको tan फंक्शन चाहिए, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन 1 माइनस साइन का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला किसका था 1 प्लस कॉस या तो 1 माइनस कॉस का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, साइन थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे कॉस थीटा के अंदर, साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा, एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप साइन π/2 माइनस थीटा। तो ईयर 1 माइनस साइन थीटा यू कैन राइट 1 माइनस कॉस π/2 माइनस थीटा, तो ईयर कॉस थीटा गिवन यू कैन राइट साइन π/2 माइनस थीटा, ये हो गया हमारा 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। नाउ वी नो दैट कि भी 1 माइनस कॉस अल्फा क्या था हमारा फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2, और साइन अल्फा का फॉर्मूला तो आपको पता ही है 2 साइन अल्फा/2 कॉस अल्फा/2। इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पहले तो 2 फिर साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसको बाई 2 करो, इसको बाई 2 करेंगे तो π/4 माइनस थीटा/2, ये आ गया हमारा 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस थीटा/2। ईयर पहले तो 2 आएगा, फिर साइन, एंगल क्या आएगा, एंगल तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, π/4 माइनस थीटा/2 इंटू कॉस, एंगल हाफ होगा π/4 माइनस थीटा/2, क्योंकि बाई 2 करना है, इसको बाई 2 करेंगे तो π/4, इसको बाई 2 करेंगे तो थीटा/2, यानी π/4 माइनस थीटा/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 1 पावर साइन का भी कैंसिल हो जाएगा, तो नोमिनेटर में क्या रहेगा साइन π/4 माइनस थीटा/2, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा कॉस π/4 माइनस थीटा/2। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया हमारा tan हो गया। अब तो कंडीशन चेक करना पड़ेगा, tan इनवर्स ये आपको पता है कि भी tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है x होता है, x कहाँ पे मिलेगा इसके रेंज में मिलेगा ओपन इंटरवल माइनस π/2 प्लस π/2। अब ये चेक करो, ठीक है। कंडीशन क्या है हमारे पास, थीटा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा हमारा, कहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 3π/4 है, ओके। वी वांट टू π/4 माइनस थीटा/2, थीटा वी वांट टू नेगेटिव माइनस थीटा/2, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय -1/2 ऑन बोथ द साइड्स। नाउ वी नो दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी विल बी चेंज। अब याद रखना इनइक्वालिटी दो जगह पे चेंज होती है, एक मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, सेकंड टेकिंग रेसिप्रोकल, और थर्ड व्हेन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, बराबर। वी वांट टू माइनस थीटा/2, तो -1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये तो 0 रहेगा, साइन चेंज, ये हमारा ये चेंज हो गया, देखो ये 0 का तो 0 रहेगा, इसका साइन चेंज हो गया, ग्रेटर इक्वल टू माइनस थीटा/2, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करो तो -3π/8 हो गया। चलो ऐड कितना करना है π/4, सब में π/4 ऐड कर दो आप, ठीक है। ये π/4 यहाँ पे लिखा, π/4 यहाँ लिखा, π/4 यहाँ लिखा, इन दोनों का एडिशन तो π/4 ही मिलेगा, ठीक है। ये तो वही का वही रहने वाला है, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा ना, 4 गिवन है तो मल्टीप्लाई बाय 2π माइनस 3π माइनस π/8 हो गया, उल्टा लिख दो वापस पूरा, ये हमारा आंसर हो गया -π/8 से π/4, दैट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब इसकी कंडीशन क्या थी tan इनवर्स की, तो ये थी -π/2 टू प्लस π/2, ये π/4 माइनस थीटा/2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/8 π/4, एंड वी नो दैट इज द सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल -π/2 प्लस π/2, ठीक है ना। ये -22.5, ये 45 डिग्री, यानी इससे छोटा हो गया, ये सबसेट बन जाएगा हमारा, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बना हमारा π/4 माइनस थीटा/2, π/4 तो लिख दिया मैंने, थीटा कितना था हमारा, ये π/4 लिखा पहले, फिर -1/2, बट थीटा हमने क्या एज्यूम किया है cos इनवर्स x, वो तो हमको प्रूव करना था, आ गया हमारा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। पहले हमने LHS ले लिया, पहले हमें क्या चाहिए 9/4 चाहिए ना,
तो एक काम करो 9/4 को कॉमन निकाल दो, ये हो गया हमारा 9/4 कॉमन, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। नाउ वी नो दैट एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हमारा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या है π/2, इसको उड़ा के उधर लेके जाओ, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा, बट एक्स हमारा कितना है 1/3, ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स 1/3। रीजन साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2, यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अब प्रूव क्या करना है आपको, 9/4 तो आ गया, साइन इनवर्स 2√2/3, यानी कि अब हम क्या प्रूव करेंगे, कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स 2√2/3। तो अब इसको हम सपोज कर दो, क्या सपोज करेंगे, थीटा सपोज कर दो, अभी कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा, या तो मैंने एक्स सपोज किया, कुछ भी सपोज कर सकते हो आप, एक्स, तो एक्स कहाँ पे मिलेगा, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स क्लोज इंटरवल 0 to π, तो कॉस एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1/3, कॉस का वैल्यू 1/3 हो गया, बट हमें चाहिए साइन। नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला की आइडेंटिटी यूज करो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बट कॉस कितना था 1/3, यानी 1 माइनस 1/9 8/9। चलो कंडीशन क्या था 0 to π यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, तो साइन एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा 8 है ना, 8 यानी 2√2/3, यानी साइन एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2√2/3, एक्स कितना हो गया साइन इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया एक्स का। ठीक है, ये एक्स हो गया हमारा, बट एक्स एक्चुअली क्या सपोज किया था कॉस इनवर्स 1/3, तो कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू वी गेट साइन इनवर्स 2√2/3, तो आगे वाला में सब्स्टिट्यूट कर दो, आगे हमें क्या मिला था 9/4, कॉस इनवर्स 1/3 था ना, तो कॉस इनवर्स 1/3 कितना है साइन इनवर्स 2√2/3, तो वी गेट 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये तो हमारा आंसर था, RHS आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13, इट इज इंपॉर्टेंट, सो solve the equation, that means we want to find the value of x, you are given 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse 2 cos x, ये हो गया 2 tan inverse x हो गया, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लास्ट फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ थ्योरम नंबर 6 में, 2 tan inverse x इक्वल टू यू कैन राइट tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यार x इक्वल टू एक्चुअली कितना है cos x है, क्या मिलेगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये मिल जाएगा हमें, और 2 cos x यानी 2 अपॉन sin x, बिकॉज cos x इक्वल टू यू कैन राइट 1 अपॉन sin x। ओके, तो 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर x, tan इनवर्स इट इज 1 फंक्शन, तो इट इज कैंसल, 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर, 2 अपॉन sin x 2 कैंसल, sin x है डिनोमिनेटर में, तो फर्स्ट वी एज्यूम sin x नॉट इक्वल टू 0, if sin x not equal to 0 तो sin x cancel, we get cos x upon sin x equal to 1 upon sin x, cos upon sin that is cot x equal to 1, तो x equal to क्या होगा π/4, बराबर x equal to π/4। अब क्या करेंगे, इसको वेरिफिकेशन करना, ये डायरेक्ट आंसर नहीं हो गया, दिस वैल्यू पुटिंग इन LHS एंड RHS एंड टेक द आंसर। ठीक है, नाउ x equal to π/4 पुटिंग इन LHS, चलो क्या आएगा 2 tan इनवर्स cos x है, बट x कितना है π/4, नाउ cos π/4 क्या होगा 1/√2, यानी 2 tan इनवर्स x हो गया। वापस फॉर्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हो आप, या तो फॉर्मूला अप्लाई करो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, ये x हो गया, ये y हो गया, एक्स वाई क्या मिलेगा 1/2 यानी लेस देन 1 होगा। चलो फॉर्मूला हो गया हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसका एलसीएम लेंगे तो √2 इधर आएगा, इसका √2 इधर आएगा, नीचे 2, ये नीचे 2 कैंसिल, 2 माइनस 1 यानी √2 प्लस √2 अपॉन 2 माइनस 1, √2 प्लस √2 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज √2 प्लस √2 कितना होगा 2√2, और नीचे 2 माइनस 1 दैट इज 1, यानी आंसर क्या आएगा tan इनवर्स 2√2, इट इज RHS। चलो RHS में क्या है tan इनवर्स 2 cosec x, बट x कितना है π/4, cosec π/4 sin π/4 1/√2, तो cosec π/4 कितना होगा √2, tan इनवर्स 2√2 हो गया। LHS में भी tan इनवर्स 2√2 आया, RHS में भी tan इनवर्स 2√2 आया, यानी बोथ आर इक्वल, सो x इक्वल टू π/4 इज वेरीफाइड। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज π/4। आगे हमने सपोज किया था sin x नॉट इक्वल टू 0, सपोज sin x 0 तो क्या हो सकता है sin x इक्वल टू 0,
तो ऑब्वियसली एक्स जीरो होगा। अगर एक्स जीरो है तो रेसिप्रोकल में था साइन, तो 1/sin x यानी cos x इज नॉट डिफाइंड, सो x इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, सो वी ओनली वन सॉल्यूशन, इट इज π/4। चलो क्वेश्चन नंबर 14, सोल्व द इक्वेशन tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x व्हेन x इज पॉजिटिव। ये तो फॉर्मूला हो गया ना, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, वी नो दैट, ये आपको पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो सेपरेट कर दो इसको, tan इनवर्स 1 माइनस tan, देखो फॉर्मूला आपको पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो वी गेट tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x हो गया, नेगेटिव को इधर लेके आओ पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 हो गया ना, tan इनवर्स कॉमन 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, यह आ गया 3/2, tan इनवर्स 1 बट 1 क्या होगा tan π/4, tan इनवर्स 10 कैंसिल, π/4 इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स x, 2 कैंसिल, 3 नीचे आ जाएगा, π/2 और ये 3 नीचे आएगा तो कितना होगा π/6, π/6 इक्वल टू tan इनवर्स x, तो x इक्वल टू कितना हो गया 10 π/6, 10 π/6 का वैल्यू कितना है 1/√3, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 15 नंबर एमसीक्यू है, तो आप एमसीक्यू मेथड करो, साइन ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू डैश 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 mod x लेस देन 1, tan इनवर्स है, ये एंगल हो गया, tan कहाँ देखता है ऑपोजिट एडजेसेंट यानी x, ये 1, ये आपको फाइंड करना है, पाइथागोरस यूज़ करो तो क्या होगा x² + 1, उसका रूट क्या होगा रूट x² + 1। अब हम क्या करें, साइन है, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, चलो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स साइन कहाँ देखेगा ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस, यानी साइन इनवर्स x क्या होगा x अपॉन रूट x² + 1, साइन ऑफ साइन इनवर्स कैंसिल, वी गेट ओनली x अपॉन अंडर रूट x² + 1, और आंसर हमारा डी है। चलो sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x equal to π/2 it is given and we want to find the value of x, यानी सोल्व द इक्वेशन ही हो गया। चलो पहले क्या करेंगे, ये नेगेटिव को ऑपोजिट में ले जाओ, पॉजिटिव हो गया, π/2 प्लस क्या होगा 2 sin इनवर्स x, ये sin इनवर्स को इधर लेके आओ तो साइन हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो साइन π/2 प्लस ये पूरा आपका थीटा हो गया, तो साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो यू कैन राइट कॉस थीटा कितना है 2 sin इनवर्स x हो गया हमारा, यानी 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। चलो अब फाइंड क्या करना है आपको, एक्स फाइंड करना है, तो ये हो गया कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलो कॉस 2 थीटा कितना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन है तो साइन में लेना पड़ेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना है हमारा साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स हो गया, यानी 1 माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स कैंसिल, यानी क्या मिलेगा 1 माइनस 2x²। चलो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x², तो 1 तो कैंसिल हो गया, अब क्या हो गया माइनस 2x को इधर लेके आओ, 2x² माइनस एक्स हो गया, चलो x कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा 2x माइनस 1, दैट इज 2 वैल्यूज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2। चलो अब क्या करेंगे हम लोग वेरिफिकेशन, टेकिंग x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुटिंग इन LHS, LHS हमारा कितना था साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x, x इक्वल टू क्या है 0, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 होगा, ये मिल गया हमें LHS, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, 1 कब होता है साइन π/2, 0 कब होता है साइन 0, यानी आंसर क्या मिला π/2, इसका आंसर क्या मिला 0, यानी आंसर कितना हो गया π/2, वो तो ऑलरेडी है आपके पास RHS, एंड x इक्वल टू 0 इज वेरीफाइड। नाउ टेकिंग x इक्वल टू 1/2, वापस डालो LHS के अंदर, 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2, और ये भी 1/2 होगा, ठीक है, तो ये मिलेगा हमें साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 यानी 1 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, 1 माइनस 2 कितना होगा -1, माइनस साइन इनवर्स 1/2, यानी ये तो π/6 हो गया, तो माइनस π/6 मिला, नॉट इक्वल टू RHS, दैट मीन्स x इक्वल टू 1/2 इज नॉट वैलिड, सो वी ओनली वन वैल्यू इज वैलिड, विच वैल्यू x इक्वल टू 0, so we get x equal to 0 is answer। चलो लास्ट सम, tan इनवर्स x upon y minus tan इनवर्स x minus y upon x plus y, ये we want to x upon y, तो डिवाइड बाय y कंपल्सरी, इसको हम डिवाइड बाय y करेंगे तो क्या मिलेगा x upon y minus 1 x upon y plus 1, ये मिलेगा हमें, ठीक है ना, ये तो पहला वही था tan इनवर्स x upon y
माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस वन, इसको अरेंज कर दो अभी। टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस वन, इसको इंटरचेंज कर दो तो वन प्लस एक्स अपॉन वाई लिख सकते हो आप। चलो ये मैंने लिख दिया, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस वन, वन प्लस एक्स वाई। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया, देखो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वन प्लस, बराबर, सॉरी ये हमारा फॉर्मूला बन गया ना, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो गया। तो क्या लिखेंगे इसके ऊपर, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स वन, ब्रैकेट ओपन करो, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन कितना होता है पाई बाय फोर, बिको टेन पाई बाय फोर होगा, वन इक्वल टू टेन इनवर्स और टेन कैंसिल, तो वी गेट डायरेक्टली आंसर पाई बाय फोर। पाई बाय फोर हमारा कितना है सी। एक एक्स्ट्रा देखते हैं हम लोग, एमसीक्यू है, गुड सेट में भी आता है मोस्टली। साइन इनवर्स टेन पाई बाय फोर माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई एक्स माइनस पाई बाय सिक्स इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये देखो साइन इनवर्स हो गया, टेन पाई बाय फोर कितना होता है वन, माइनस साइन इनवर्स रूट थ्री बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स हो गया। चलो साइन इनवर्स वन डायरेक्ट लिख दो, अभी तो एमसीक्यू है, अगर एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो वन यानी साइन पाई बाय टू, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, आंसर क्या बनेगा हमारा पाई बाय टू माइनस पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट थ्री बाय एक्स। चलो पाई बाय टू माइनस पाई बाय सिक्स, एलसीएम तो सिक्स हो गया, एलसीएम सिक्स हो गया तो इसको मल्टीप्लाई बाय थ्री करेंगे, थ्री पाई माइनस पाई कितना हो गया टू पाई बाय सिक्स साइन इनवर्स रूट थ्री बाय एक्स, टू थ्री जा सिक्स, पाई बाय थ्री हो गया, साइन इनवर्स यहाँ पे आएगा तो साइन, चलो साइन पाई बाय थ्री कितना होता है रूट थ्री बाय टू, ये कितना हो गया रूट थ्री बाय एक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, थ्री बाय फोर इक्वल टू थ्री बाय एक्स, थ्री थ्री कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स इक्वल टू आंसर कितना आ गया हमारा फोर। अब ये देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू क्या है थ्री पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये भी एमसीक्यू है, गुड सेट टाइप का एमसीक्यू है, बराबर है। तो देखो कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स थ्री टाइम्स है, थ्री पाई है, थ्री पाई को मैं क्या करता हूँ स्प्लिट कर देता हूँ, एक पाई इसको दे देता हूँ, एक पाई इसको दे देता हूँ, एक पाई इसको दे देता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, राइट। अब ये देखो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया कॉस पाई हो गया, पर कॉस पाई का वैल्यू कितना है माइनस वन है। इसके ऊपर कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई, तो वाई भी क्या होगा कॉस पाई, तो वाई का वैल्यू भी कितना मिलेगा माइनस वन मिलेगा। जेड में लेंगे तो जेड का भी आंसर कितना आएगा माइनस वन ही आएगा, ठीक है, तीनों को दे दिया। ओके अब ये वैल्यू यहाँ डाल दो, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। एक्स का वैल्यू कितना है वाई का वैल्यू कितना है, दोनों का माइनस वन है, प्रोडक्ट कितना बनेगा वन, इसका प्रोडक्ट भी कितना बनेगा वन, इसका प्रोडक्ट भी कितना बनेगा वन, वन प्लस वन थ्री, आंसर इज थ्री। आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 2, देखो हिंट भी दिया है मैंने थोड़े थोड़े, बराबर, कोई कोई सब में हिंट दे दिया क्योंकि आप लोग 11th की फॉर्मूला भूल चुके होते हैं ना। तो कॉट, जैसे यहाँ कॉट इनवर्स है तो इधर आएगा तो कॉट होगा, ये अल्फा और बीटा होगा, तो कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा आपको, क्या होगा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा होगा। सम टू सम यहाँ पे भी है, ये आपका थीटा हो जाएगा या अल्फा जो भी आप सपोज करते हो, थीटा सपोज किया मैंने तो साइन थीटा कितना मिलेगा 5/13, इसके ऊपर से आपको कॉस थीटा फाइंड करना, क्यों ये 2 थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे 2 कॉस के थीटा माइनस वन। थर्ड वाला है इधर एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा कॉस थीटा सपोज करना पड़ेगा क्योंकि आंसर क्या है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है ना, तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा आपको एज्यूम करके करना है। इस टाइप का सम तो मैंने कराया हुआ है, खाली कंडीशन चेंज किया हुआ है, यहाँ कंडीशन पाई टू 3 पाई बाई 2 है, पाई टू 3 पाई बाई 2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव बनेगा। याद रखना, जब मोड लोगे आप कॉन्जुगेट लेने के बाद, बीच वाला टर्म जो मोड में आएगा ना तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों? π2 3π/2 है, थर्ड क्वाड्रेंट है, बराबर है। यानी 5 सम आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये 5 सम की कंपलसरी प्रैक्टिस करना है। ये बोर्ड में आ चुके हैं सब 5 सम। ठीक है, ओके।